Hello everyone, welcome back. So this is the most requested topic on my channel, and I think I had been postponing this for a long time for some reasons. And yesterday I was going through the comments and I saw somebody's comment that have you forgotten about the biology video? So I'm like, okay, अब video बना देते हैं गाली पढ़ने से पहले. So here it is and let's dive right into it. Okay. सो सब लोग अपने दिमाग में ये बात अच्छे से डाल लो कि द ओनली बुक दैट यू हैव टू रिफर इन बायोलॉजी इज ओनली एंड ओनली NCERT एंड नथिंग एल्स. Okay, so 2019, 2020, 2021, if you have seen the paper, 100% of the questions are from NCERT. So उसके लिए अगर आप Truman या फिर Pradeep, if you are going to refer these books even for some extra knowledge, I think that's a total waste of time. And you will invest your energy but there will be no outcome. So please don't refer any extra books. Also, many people ask which topic is important, which isn't. So let me tell you, everything is important. 2019 से जब से NT ने पेपर बनाना स्टार्ट किया है, आई डोंट सी एनी सच पैटर्न कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं या उस चैप्टर से कम आते हैं. आई फील एवरी चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू ईच एंड एवरी चैप्टर. So please don't be under this pretense that okay, this chapter has more weightage so I'll do it more. Please do each and every chapter, because there's no such pattern now that this is the amount of questions that will come. They can give any amount of question from any chapter. This happened especially in physics this time, that many chapters were completely missing. Okay, so just be ready कि कहीं biology में ऐसा किसी दिन ना हो जाए. So just forget that weightage part. जैसे अलग सर का एक बार मैंने सुना था, he said कि weightage कुछ नहीं होता है, पढ़ना सब कुछ है. So right, पढ़ना आपको सब कुछ है, हर चीज़ equally ही important है. And I'm stressing on this fact so much because many of you ask which chapter is important, which should I do it first. But I don't think so that you should think like this कि हाँ ये chapter important है, इसी को पहले करूँगी. No, not at all. Just do all the chapters and learn all the chapters nicely, क्योंकि questions कहीं से भी आ सकते. You might ask कि sometimes 1 to 2 questions are from outside. Like this NEET 2021, I heard there was a question about corpus luteum, which was, I think, which thing secretes relaxin hormone. So that was a contradictory question, and many people said in NCERT it's mentioned ovary, but in the options they haven't given ovary. So many people marked corpus luteum, and there was many contradictions that it's in the later phase of pregnancy and things like that. But now you will say कि okay, अब इन सब questions को कैसे tackle करेंगे कि अगर आ जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, जैसे मैंने क्या किया था, 15 क्वेश्चंस हैं, उसमें जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था एंड आई सॉ कि ओके इसमें ओवरी नहीं है, सो आई थॉट कि ये क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, तो मैंने उसको छोड़ दिया था बिकॉज मैं वो चांस लेना ही नहीं चाहती थी. सो इफ यू हैव अ ऑप्शन ऑफ 15 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 10, तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस को ना छोड़ने की ही कोशिश करिएगा. दूसरा, इफ़ यू से कि मुझे ये नॉन NCERT इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ से मिलेंगे, सो दैट यू हैव टू सी लेक्चर्स ऑफ गुड टीचर्स, लाइक जो NCERT से ज़्यादा डेविएट नहीं करते हैं एंड दे मेंशन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आउट ऑफ NCERT दैट विल हेल्प यू गिव एन एज. सो अकॉर्डिंग टू मी, सब जानते हैं कि तरुण सर इज अ वेरी गुड टीचर इन बायोलॉजी एंड ही लिटरली टीचर्स इन अ वे कि आपको बायोलॉजी से प्यार हो जाएगा. एंड वो NCERT से ज़्यादा बाहर भी नहीं जाते हैं. वो जब पढ़ाते हैं तो NCERT को ही बेस लेके पढ़ाते हैं एंड ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं जो शायद आपके पास आ जाए क्वेश्चंस में, एग्जाम में. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन अबाउट गरिमा गोयल मैम. शी इज़ ग्रेट. लाइक मैंने उनके लेक्चर्स देखे हैं कुछ एंड आई फील कि शी इज़ अ वेरी गुड टीचर. उनके पढ़ाने का स्टाइल भी इतना अच्छा लगता है मुझे. आई इंजॉय हर क्लासेस टू. सो या चूज अ टीचर जो मतलब तुमको पढ़ने में मजा आए, और ऑल्सो तुम देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के, नॉट बिफोर 2010 बिकॉज तब नीट का पैटर्न डिफरेंट था. इवन 2000 आई मस्ट से कि 2019 से पहले नीट का पैटर्न डिफरेंट ही था पूरा. अब 2019 के बाद से ही चेंज हुआ है. सो तुम जब पेपर्स देखोगे ना 3 साल का, यू विल रियलाइज कि ज़्यादा बाहर NCERT से जा ही नहीं रहा है, तो मैं उतना क्यों पढ़ूँ. सो प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट योर टाइम इन सब बाहर की चीज़ों में. इतना टाइम मत इन्वेस्ट करो. जो इंपॉर्टेंट है वो टीचर तुमको बताएगा, और ऐसे ही टीचर को फॉलो करो
जो तुमको ज़्यादा एनसीईआरटी के बाहर का नहीं बता रहा है, जो इम्पॉर्टेंट है केवल वही पॉइंट्स बता रहा है. नाउ इज़ लेक्चर एंड नोट टेकिंग. नोट टेकिंग आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको एनसीईआरटी पैराग्राफ फॉर्म में नहीं समझ आती है, समझ नहीं इन द सेंस कि आपको पढ़ने में उसको बहुत टाइम लगता है एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट पैराग्राफ, कि आपने हाँ शुरुआत से स्टार्ट किया, आप एंड तक पहुँचे एंड आप बीच की इन्फॉर्मेशन वापस भूल गए. आफ्टर 2-3 days यू विल सी कि मेरे दिमाग में कुछ है ही नहीं है. एंड मैनी पीपल हैव डिफिकल्टी इन दिस. और कुछ लोगों को जब कुछ फ्लो चार्ट्स एंड टेबल्स पे मिल जाता है, दे ईजली रिवाइज इट एंड इन वेरी लेस टाइम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सजेस्ट कि इफ़ यू आर अ फ्रेशर, मतलब आप एकदम 11th-12th की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, आई फील यू शुड वॉच लेक्चर्स एंड टेक डाउन नोट्स देन एंड देन ओनली. बिकॉज आई बिलीव कि फर्स्ट टाइम बायो चैप्टर लेक्चर से पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है. उसको अपने आप एनसीईआरटी से मत पढ़ें, पहले लेक्चर्स देखें, उसके बाद ही आप उसको वो करें. उसके बाद नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, जैसे इन द कोर्स ऑफ 2 years जो फ्रेशर वाला कोर्स होता है, तो उसमें आपको एक दिन में ज़्यादा टॉपिक्स तो नहीं पढ़ाए जाते, 2-3 टॉपिक्स मुश्किल से जो आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं. सो यू हैव टू डू व्हाट, आपने जो नोट्स क्लास में लिए एंड यू रीड एनसीईआरटी. नाउ यू कैन सी द पॉइंट्स इन योर नोट्स जो एनसीईआरटी से बाहर के हैं, ठीक है. तो आप उसको बस हाईलाइट करेंगे, केवल उन पॉइंट्स को जो एनसीईआरटी से बाहर के, सो दैट यू कैन डिफ्रेंशिएट कि नोट्स में ये पार्ट जो लिखा है ये तो एनसीईआरटी में ही है और ये जो है ये बाहर का है. सो जो भी लोग एनसीईआरटी से पढ़ने में कंफर्टेबल हैं, पैराग्राफ में उनका हो जाता है बार बार पढ़ के, सो दे रिवाइज एनसीईआरटी एंड बस अपनी नोटबुक उठा के केवल वो हाईलाइटेड पॉइंट्स देखिए जो आउट ऑफ एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ओके, नाउ एज फॉर पीपल जो पैराग्राफ में पढ़ना नहीं पसंद करते हैं, सो यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स. ओके, सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने हर चैप्टर के बायोलॉजी के यू कैन से एक थ्रेडेड फॉर्म में नोट्स बना लिए थे. लाइक आई डिडंट मिस इवन अ सिंगल लाइन ऑफ एनसीईआरटी. लेट मी से आई डिडंट मेक एनी शॉर्ट नोट्स. I made fast track revision notes with 100% content of that chapter, just in a different form. You can say I just put the whole NCERT in a different form. So what I did, like there's a para and whatever it's written, I read that and I wrote it on a notebook और उसको मैंने flow chart के form में लिख लिया, ठीक है. So इससे क्या होता था ना कि सारे points मेरे आँख के सामने आ जाते थे अच्छे से. एंड व्हेन आई यूज्ड टू रिवाइज, मेरा रिवीजन बहुत जल्दी होता था. आई कुड रिवाइज 1 chapter in just 30 minutes. सो दैट वॉज वेरी बेनिफिशियल टू मी. सो आई सजेस्ट मेक योर नोट्स योर सेल्फ ओनली. एंड अगर आप मेरे नोट्स ट्राई करना चाहते हो तो मैंने कुछ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाले हैं. यू कैन सी दैट, यू कैन हैव एन आइडिया कि हाउ टू मेक दीज नोट्स. एंड ऑल्सो आई टेल यू राइट नाउ कि उसको कैसे मैंने किया था. ओके, सो लाइक this is the chapter organism and population, ठीक है. and you have these major abiotic factors here and it's such a long para, like see पूरा ये सब पैराग्राफ्स में दिया है एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. लाइक इसमें हर पैराग्राफ में जितने भी लाइन्स लिखी हैं ना वो सब इम्पॉर्टेंट है. लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे सो यू विल सी ना कि आपने फर्स्ट से स्टार्ट किया एंड व्हेन यू रीच द एंड ऑफ द पेज कि आप भूल गए कि बीच बीच में क्या लिखा था. So what I did was I made these notes on organism and population and as you can see मेरी पूरी NCERT खाली है. इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है. I did was कि मैंने पूरे NCERT का कंटेंट अपने नोट्स में डाल लिया था एंड उसके बाद से मैंने NCERT एक बार भी नहीं छुई. लाइक लिटरली मैंने एक बार भी नहीं छुई थी बिकॉज आई हैड पुट 100% कंटेंट इन माई नोट्स. एंड मैं और मेरी वो आदत नहीं थी कि होता है ना शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना कि ऊपर की इन्फॉर्मेशन. एज वी ऑल नो दिस टाइम देर वॉज अ क्वेश्चन इन बायो, आई थिंक इट वॉज फ्रॉम बायोटेक एंड इट वॉज कि the answer was recombinant DNA technology and the options में वो भी था सदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड मैनी पीपल सेड कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग आंसर होगा. बट ऑनेस्टली मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये इसी में दिया हुआ है बट ये बहुत लाइक छुपा के दिया हुआ है. लाइक लेट मी जस्ट सी वेयर इट्स गिवन. या सो जैसे इसमें देखो ये मॉलिकुलर डायग्नोसिस है एंड फर्स्ट पैरा में 3 तरीके की मेंशन किए हुए हैं कि यहाँ पे PCR है, ELISA है एंड रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है. नाउ मैनी पीपल सेड कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग होगा बट बिकॉज
मैंने वही कहा था ना कि मुझे शॉर्ट नोट्स इसीलिए नहीं जमते कि कब कहाँ अंदर से क्वेश्चन आ जाए पता नहीं चलेगा. सो आई जस्ट पुट ऑल द कंटेंट इन माई नोट्स एंड जस्ट सी, जैसे वो वाला जो पार्ट था जिसमें एबायोटिक फैक्टर्स थे. सो हाउ डिड आई, मैंने इसको पूरा वो कर दिया था कि सब अलग कर दिया, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड फिर सॉइल. तो मैंने क्या किया था, पूरा इसको ऐसे कर दिया था. और ये पैराग्राफ में नहीं, मैं जब ये पढ़ती थी ना तो मुझे पूरा सब दिख जाता था कि हाँ ये कंटेंट है इसमें. एंड पूरे नोट्स मैंने ऐसे ही बना लिए थे, लाइक यू कैन सी. सो यू कैन सी मेरे पूरे नोट्स में आपको पैराग्राफ जैसा कुछ दिखेगा ही नहीं, बिकॉज मुझे खुद पैराग्राफ में पढ़ने में इतनी दिक्कत होती थी कि मुझे याद नहीं होता था. 2-3 बार भी मैंने जब NCERT पढ़ ली थी तब भी मुझे नहीं याद होता था. उसके बाद जब मैंने ऐसे नोट्स बना लिए और इसको जब मैं 2-3 बार पढ़ती थी मुझे ऐसे याद हो जाता था कि मैं डिटेल्स में अंदर से कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेती थी. सो नोट टेकिंग इज़ नाउ इंडिविजुअल, कि अगर आप NCERT से पढ़ सकते हैं, आपको कंफर्टेबल हैं आप उस पैराग्राफ फॉर्म में, तो आई सजेस्ट कि आप जो लेक्चर में नोट्स बना रहे हैं वो नॉर्मली उसी समय बनाइए जब आप लेक्चर देख रहे हैं. एंड ओनली मार्क द नॉन NCERT इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो जब आप NCERT से पढ़ें उसी समय नोटबुक अपनी उठाओ और देन जस्ट सी द हाईलाइटेड पॉइंट्स, नॉट अदर पॉइंट्स, क्योंकि वो तो NCERT में है ना ऑलरेडी. एंड जो बच्चों को ऐसे है तो दे कैन मेक देयर ओन नोट्स. ऑब्वियसली टेक्स टू मच टाइम, बट अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो उसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है. सो या आई मेड सच नोट्स इन बायोलॉजी एंड ऑल्सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू, बिकॉज मैं काइंड ऑफ उसको सेम ही तरीके से ट्रीट करती थी कि सब रटना है. ऑब्वियसली एट दी एंड सब रटना होता है. एक बार समझने के बाद यू हैव टू रटाफाई एवरी थिंग. दैट्स लाइक द ट्रूथ. लाइक यू कैन सी मैंने 11-12 सबके नोट्स बना लिए थे एंड इट वॉज अ डोंटिंग टास्क ऑनेस्टली. बट इसी कारण है दैट आई कुड सिक्योर 360 आउट ऑफ 360, बिकॉज मैंने एक बार भी NCERT नहीं उठाई थी ये बनाने के बाद. एंड आई जस्ट लुक अप द डायग्राम्स इन NCERT. वो मैंने अपने नोट्स में नहीं डाले थे, उतनी मेहनत कौन करेगा जब डायग्राम्स दिए हुए हैं बुक्स में. सो आई यूज टू लुक इट अप फ्रॉम दैट ओनली. Also, this was a very useful technique. I remember आशीष अरोड़ा सर ने अपने एक वीडियो में कहा था कि on top of every chapter just mark these single lines. Let me show you. Like this. Okay. So I wrote short notes and I drew these lines, and after reading one chapter I used to cut these lines. I don't know what was the satisfaction in that, but it was very satisfying. Honestly, just cutting those lines, how many times I revised that, honestly gave me good confidence कि मैंने इतनी बार ये चैप्टर कर लिया है. एंड ऑल्सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर चैप्टर को 10-15 बार करो. जो चैप्टर आपको कम याद रहता है, जो बहुत बार रिवाइज करने के बावजूद आपको कम याद रह रहा है, उसको आप 10-15 टाइम्स करो. और जो याद रहते हैं उनको 2-3 टाइम्स में ही अगर आपको हो जा रहा है, सो यू कैन डू दैट. ओके, जैसे लाइक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इज अ चैप्टर, ईजी चैप्टर है. सो आई रिवाइज दैट ओनली 4-5 टाइम्स. उसके बाद मुझे उसकी रिविजन की जरूरत नहीं पड़ी. बट नाउ दीज बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल आई रिवाइज इट एटलीस्ट 10-15 टाइम्स. सो प्लीज़ सी कौन सा चैप्टर आपको कम याद है, कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा याद है, उस हिसाब से उसको टाइम दो. Let's come to the question practice. Now I think this is a very individualistic decision, because बहुत लोग होते हैं that they only revise biology and they can solve any type of question in the exam. It was the case with me that I only revised bio, but I did the back exercises of NCERT. Please don't leave that. मैंने अपनी बैक एक्सरसाइज NCERT में जो भी कुछ बैक एक्सरसाइज में ना ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो टेक्स्ट में नहीं रहते, तो उसको मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड कर दिया था ताकि वो मेरे आँख से कभी जाए ना. सो या डोंट फॉरगेट बैक एक्सरसाइजेस. बट हाँ, मेरे को लाइक 5-6 बार हर चैप्टर रिवाइज कर लेने के बाद आई यूज़ टू अटेंड NCERT बेस्ड टेस्ट ओनली. ओके, सो मुझे दिक्कत नहीं होती थी, मुझे क्वेश्चंस बनाने का इतना वो नहीं था कि ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बिकॉज आफ्टर रिवाइजिंग I could just solve the questions in the test. I didn't need any additional question practice. But if होता है कि many people set their concept in the mind through question practice only. So for them, I would like to recommend MTG Fingertips. Okay, so that's a good book. You can solve it. It has less number of questions, and I think that's more than enough. Also, solve NCERT Exemplar.
Also, I would like to introduce MemoNeat. So, MemoNeat is an app that will give you totally NCERT based question bank. All the diagrams and everything, also, even the summary is included. So, yes, you will get a question bank that's full of the information, everything's that present in NCERT, so that you can revise everything in the question form, because I know some students are not able to retain even after revising from NCERT. So you can cement everything in your mind by solving the questions from their app. So also, since they give questions from NCERT line to line, 90% of the questions in NEET come from that only. Also, the very interesting thing I found with MemoNeat was that they use the repeat technique. So if you solve a question on first day and you got it wrong, then they'll ring notification on your phone on third and fifth and seventh day too, consecutively, till the time you get that question right many times. So you don't have to worry about of pinpointing those questions that you got wrong. MemoNeat will do that for you. MemoNeat has more than 15,000 types of questions in their question bank, so that you don't miss any line of NCERT, and they charge rupees 1,399 for 1 year subscription, but you can use my code Tanisha50 to get a 10% off. Also, I had ARS question bank, Achievers batch, RN Singh Bhaiya from AIMS Delhi. So I did solve few chapters of biology from that, and I think it's a good question bank too. You can solve from there too. If any one of you has bought it, go forward with it. I don't think so. You need any other book for biology question practice if you have that question bank, or either MemoNeat question bank. If you have such question banks, I don't think so. You need any extra book. If you don't have these question banks, you can go for MTG, but if you have these, please don't refer any extra book then, because there are a lot of questions in MemoNeat too, and also in RN Singh Bhaiya's question bank. So yeah, but keep in mind that in ARS question bank there are 200 to 300 questions in each chapter, so you need to give time to it. You have to be consistent in solving questions. If you are someone जिसको question से ही याद होता है, I think both of these question banks are epic for you. So yeah, I like that. But मुझे कुछ चैप्टर्स में ज़रूरत थी क्वेश्चन बैंक की, तो मैं वो करती थी, और कुछ में मुझे नहीं ज़रूरत लगती थी तो मैं नहीं करती थी. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. सो जस्ट सी वेयर यू लैक एंड कहाँ पे आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की, वहीं पे कीजिए. एक्स्ट्रा बर्डन मत लीजिए किसी भी बुक का, बिकॉज वी ऑल नो NEET is strictly NCERT based these days now, and don't forget that every chapter is important. So yeah, that was all about biology. I hope you got your questions answered, and I tried to be in detail as much as possible. So I hope you liked the video. Thank you for watching.